ذرا ہٹکے کے ساتھ خوش آمدید. آج کل ایسا مسئلہ ہے کہ جس بھی آرٹسٹ سے پوچھیں کہ بھائی آپ کے سیاسی خیالات کیا ہیں تو وہ کہتا نہیں 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 میرا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن یقین کیجئے کہ اسی ملک میں آج سے 30 35 40 50 سال پہلے جو بھی آرٹسٹ ہوتے تھے, شاید تھیٹر کے ہوں یا ٹیلی ویژن کے ہوں یا ریڈیو کے ہوں, ان سے جب ہم پوچھتے تھے کہ بھائی آپ کا کوئی سیاسی کمٹمنٹ بھی ہے یا آپ نرے اداکاری کرتے ہیں یا ڈائریکشن ہی کرتے ہیں, تو ان کا ایک جو اس زمانے کی زندگی ہوتی تھی اس کے بارے میں ایک تصور ہوتا تھا, باقاعدہ ٹھوس تصور. ان کے ارد گرد جائنٹس ہوتے تھے, ایک پیڈیگری ہوتی تھی, ان کی جو تربیت ہوتی تھی وہ ایسے لوگوں کے درمیان ہوتی تھی کہ جن کا کوئی مقصد ہوتا تھا اور وہ مقصد پھر جنریشن ٹو جنریشن ان میں شفٹ ہوتا تھا. ضیاء کے دور میں بہت ساری غلط باتیں ہوئی ہوں گی, لیکن ضیاء کے دور میں ٹیلی ویژن پہ کچھ اچھے کام بھی ہوئے اور کچھ ہمیں نعمتیں بھی ملی. ان میں سے ایک نعمت تھی صبا حمید. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو, آئی ایم آنرڈ ٹو بی ہیئر ایز ویل. اچھا, میں نے جو پڑھا ہے تھوڑا بہت, تمہاری طرح گوگل نہیں کیا ہے, تو وہ فینس سے تو انہیں کہا جاتا ہے کہ صبا حمید جو ہے وہ میرل اسٹریپ آف پاکستان ہیں. تو میرے خیال میں بہت بڑا یہ آنر ہے کہ یعنی میرل اسٹریپ جو ہے امریکہ کی صبا حمید ہے. جی بالکل, یو گاٹ می, بالکل. تو ہمارے لیے کیونکہ ظاہر ہے میرل اسٹریپ کی بہت, کیوں کہتے ہیں کہ جی فلانا جو ہے غالب سندھ ہے, وہ بھائی صبا حمید ہے, میرل اسٹریپ یہ کہہ رہے ہیں. سر میں نے تو نہیں کہا نا, آپ مجھے کیا چاہ رہے ہیں؟ اچھا ان سے بات کر لیتے ہیں. صبا ویلکم ٹو دا شو. اور ہم سب بڑے فین ہیں. وہ وسعت نے تو قصیدہ پڑھ دیا, میں نے ایک سینٹنس کہہ دیا. میں زرار سے درخواست کروں گا کہ اگر وہ کچھ کہنا بس فلانا ٹیرا. دیکھیں میں آپ کی نسل کا ہوں, یہ جو ہے یہ میشا کی نسل کے ہیں, لہٰذا یہ کچھ آپ کے بارے میں زیادہ مجھے نہیں لگتا بات کرتا. میں کہاں کھڑا ہوں؟ میں ایکچولی میرا ایک سوال ہے, کیا ٹیلنٹ واقعی جینیٹک ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ یہ مطلب آپ کی فیملی دیکھ کے اسپیشلی مطلب یہ ایک فیلنگ آتی ہے کہ ٹیلنٹ از انہیریٹیڈ. مطلب یہ اب یہ تربیت کا کتنا اس میں فیکٹر ہوتا ہے اور ایک نیچرلی انکلینیشن کا کتنا فیکٹر ہوتا ہے, اگر اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں. اٹ سیمز سو کہ جینیٹک اب جینز پارٹ تو پلے کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے پھر ہمارے میں تو کوئی نہیں ہے. لیکن آئی تھنک ماحول کا بھی بہت اثر ہے. اٹس مائی فادرز ایکچولی ٹریننگ, یا ان کا جو ہمیں گرو کرنے کا موقع جو انہوں نے دیا ایز آر پرسنالٹیز, میں بھی اور میرے بچے بھی انہوں نے ہی سارٹ آف پالے, ان کا ہی انفلوئنس تھا میرے بچوں پہ بھی. تو آئی تھنک دیٹس دا ریزن کہ وہ پرسنالٹیز گرو کرتی ہیں تو پھر جو جس طرح سے ٹیلنٹ. اچھا, آج کی نسل کو شاید علم نہیں ہے کہ یہ جو صبا ہیں یا ان کی چھوٹی بہن ہما حمید یا باقی بہنیں یا بھائی, پاکستان کے ایک بہت مشہور رائٹر, کالم نگار, صحافی, ڈرامہ نگار, فلم ساز حمید اختر صاحب, یہ ان کے بچے ہیں. اور حمید اختر صاحب جو ہیں وہ ترقی پسند تحریک کے اہم ستونوں میں شمار ہوتے تھے. فیض صاحب سیکریٹری جنرل تھے, فیض صاحب, انتظار حسین, آئی اے رحمان, ایون عبداللہ ملک, ان سے پہلے صاحب وغیرہ جو ہیں, اس جنریشن سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے صبا کا. تو ہلکا مت لیجیے گا انہیں. میرا تو ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ آپ شاید ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں ان لائک اس جنہوں نے شاید آزاد فضا میں تھوڑا سانس لیا ہے, کیونکہ جو لیٹ 70s اور 80s کا عرصہ گزرا اس کے بعد وہ جو قدغن لگی سوچ میں, تو آپ نے اس میں کام کیا. میں تو ظاہر پڑھ رہا تھا, اتنا وہ نہیں تھا, لیکن ایک بات بہت ہوتی ہے کہ سوچ پہ پہرا تھا. تو آپ نے کس طریقے سے اس سے نکلی, کیونکہ بہت زیادہ ہر چیز کو دبایا گیا تھا اور بات کہنے کا اس سے کیسے بچتے ہوئے آپ آگے بڑھے؟ بڑا مشکل تھا, بین بھی ہوئے, کیونکہ ایک چھوٹا سا قصہ ہے. ایک پلے کر رہے تھے, ایک دن کی ریکارڈنگ ہو چکی تھی, ایک دن کی باقی تھی, ایک ایپیسوڈ تھا ضیاء کے دور میں. سڈنلی یہ سارا آ گیا. مطلب ظاہر ہے ہم بھی اس وقت کوئی بہت اتنی میچورٹی تو نہیں تھی, لیکن بہرحال گھر کے ماحول کی وجہ سے یہ معلوم تھا جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. اس پلے میں ایک دن کی ریکارڈنگ, جب نیکسٹ ڈے میں پہنچی باقی کا آدھا ریکارڈ کرنے کے لیے, تو انہوں نے کہا آج آپ کو سر پہ دوپٹہ لینا ہوگا. تو تھوڑی ریبیلیس بھی ہوں, ویسے برقع بھی پہنائیں آپ اگر کیریکٹر ہے, رول ہے تو, لیکن اس میں آدھا ریکارڈ کر, میں نے کہا کیوں, کہ وہ اسلام آباد سے آ گیا ہے کہ حکم ہے کہ اب کوئی نہ کوئی اینکر, آپ کو پتہ ہی ہے پھر 5-10 سال تو یوں ہی رہا.
चाहे सो के उठ रही है, चाहे डूब रही है, चाहे अमेरिका से लैंड कर रही है, उसने सर पे दुपट्टा लेना। आई सेड आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। और मेरी बहस हो गई। डायरेक्टर थोड़े से ना वो वीक पर्सनैलिटी थे, वो मेरी बातों में आ गए और उन्होंने हमने वो प्ले, एंड आई थिंक आई एम दी ओनली वन हु डिड दैट वन डे शूट विदाउट अ दुपट्टा। बाकी सब उसके बाद आई लेफ्ट अ लॉट ऑफ सीरियल्स, लॉट ऑफ प्लेज। खुद मेरा ये सेल्फ बैन भी रहा बीच में कि मैंने कैरेक्टर के लिहाज से करना है। आई डिडंट डू इट। बहुत लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ किए, आई डिडंट। आज आज़ादी भी बहुत है, कहने की भी आज़ादी है, कोई कतगन भी नहीं है, फिर क्या हो गया? सारे उसको एकदम ग्लैमरस हो गया, ग्लैमरस हो गया। नहीं, लेकिन ये कि फिर भी पीपल लाइक यू जिन्होंने बाद में फैमिली फ्रंट किया, बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा, हंसाया भी आपने लोगों ने, लेकिन अब जो ड्रामास आ रहे हैं उसमें एक जैसे ही इश्यूज हैं, या जिस तरह है कि किसी बीवी को थप्पड़ मारना ज़रूरी है, या कुछ ऐसे जस्ट टू क्रिएट मोर ड्रामा इन अ ड्रामा। तो ये कहाँ, क्या लिखने वाले ख़त्म हो गए हैं, या बिल्कुल हमने एक चीज़ को प्रोजेक्ट करने का ठान लिया कि बस यही चीज़ चलती है, जैसे रेटिंग्स के नाम पे हमारे खूंखार टॉक शोज होते हैं, तो हाँ, उसी तरह यू वुड नो। तो आप समझें कि ड्रामे में भी कुछ ऐसा ही हाल है। अच्छा लिखने वाले इसी तरह बिलबिलाते हैं, रोते हैं, क्योंकि उनका हाथ पकड़ लिया जाता है कि नहीं ये लिखो। अच्छा करने वाले इसी तरह रोते हैं, और फिर जिन लोगों का इस काम पे तुक्का लगा हुआ है उनकी मौज है, क्योंकि वो जो भी लिखते हैं वो फार्मूला देख के। इतनी लंबी ये सैड हिस्ट्री है ना ड्रामे का की बर्बादी, क्योंकि लेकिन उसका एक यानी कि उसका प्रॉब्लम का एक वो है मेन रीज़न, दैट इज वी अंडर एस्टिमेट आवर ऑडियंस। ये बार बार मतलब हमारी डिस्कशन ये भी हो रही है, और हम एयर कंडीशन रूम में बैठ के ये फैसला करते हैं यार ये पब्लिक डिमांड, ये नहीं बिकेगा, ये नहीं बिकेगा, ये वो कभी जाते भी नहीं है। नहीं बिल्कुल, वो कभी पब्लिक से आप मिले ही नहीं है अपनी लाइफ में। लेकिन आपको पता है कि पब्लिक क्या चाहती है, और पब्लिक ये इसलिए चाहती है कि आपने देखा है किसी और चैनल पे ये चल रहा है और उसमें बड़े इश्तिहारात आ रहे हैं, आप कहेंगे यार ये माल बिकता है। और वो भी मतलब इवन फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टॉक शोज वगैरह अगर आप देखें तो मतलब एक फॉर्मेट कामयाब होता है, फिर वो होता है कि ओरिजिनल की फोटोकॉपी की फोटोकॉपी की फोटोकॉपी की फोटोकॉपी चल रही होती है, बिल्कुल। एंड अगेन एक्सक्यूज यही दिया जाता है कि नहीं पब्लिक की डिमांड ही है। अच्छा, टेलीविजन ड्रामा, थिएटर, फिर फिल्म, कहीं सुकून मिला आपको? थिएटर। अच्छा, लेकिन थिएटर तो आपने सिर्फ 5-6 साल ही किया। हाँ, बट वो आई थिंक दैट वाज माय the best time I had. I enjoyed it. I don't know, it gave me such energy. I guess feed off each other, doing it in one go. एक बात, learning the whole script, getting into the character. I actually मैंने वहीं से सीखा। तो और एक्शन रिएक्शन की गेम बहुत से ऐसे playing off co-stars, बिल्कुल। मैं अब देखती हूँ अपने इम्प्रोवाइज किया, ये भी है। फिर ये कि अब गलती हो गई और लाइव ऑडियंस के सामने उसको करेक्ट कैसे करना है, सो यू लर्न अ लॉट इन थिएटर। ये तो बिल्कुल उसी तरह है। अभी मैं ये ओलंपिक्स की क्लिप देख रहा था ना, अभी खत्म हुई है, मो फराह इथियोपियन रेसर, तो भागते भागते गिर गया और उसके साथ कलाबाजी खाते हुए दोबारा उठते हैं, स्टिल वन द गोल्ड मेडल। तो मतलब थिएटर में भी यही है ना कि नहीं मैंने प्लान ही ऐसे किया था, तो ऐसे बिलीव यही करा, आपको ऑडियंस को ये बिलीव करवाना पड़ता है कि ये ऐसे ही था। जी हाँ। तो वो दैट आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम थिएटर, और मैंने बहुत थिएटर कर। अच्छा, एक मेरा एक्चुअली जो पसंदीदा जॉनर है वो कॉमेडी है। मशहूर मैं रोने के लिए हूँ, सीरियस एक्टर ही थी। मशहूर तो मैं रोने के लिए हूँ। ये रोने हंसने की बातें जारी हैं, सबा हमीद के साथ हैं। फिलहाल एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं टेलीविज़न, फिल्म और थिएटर की स्टार सबा हमीद। वक्फे से पहले बात हो रही थी कि मेरा सवाल ये था कि तीनों जो आपने किया, टीवी भी किया, फिल्म भी किया और थिएटर भी किया, तो उसमें सुकून कहाँ मिला? तो आपने कहा थिएटर में। अच्छा, थिएटर में अगर सुकून मिल गया तो 6 साल, 35 साल, 36 साल के कैरियर में 6 साल आपने थिएटर किया और उसके बाद छोड़ भी दिया, फिर उसके बाद पलट के खबर भी नहीं ली, तो ये कैसा सुकून है? थिएटर ही नहीं हुआ ना। अब उस हिसाब में अकेली क्या करती? थोड़ा बहुत तो हो रहा नहीं, उस थोड़े बहुत को मैं थिएटर नहीं मानती। यू कांट कॉल इट थिएटर। वो एक
पकड़पन और वो जो चल पड़ा। मैं बड़ा अच्छा डांस करती हूँ लेकिन अब नहीं, अब मतलब ऐसा भी नहीं है, अभी देखो प्रोडक्शन तो होती है। मेरे लिए जरा मुश्किल हो जाता। अच्छा, थिएटर की बात की, फिल्म खासतौर पे पाकिस्तानी फिल्म, बार बार कहा जाता है रिवाइवल ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, और कुछ बहुत अच्छी मूवीज भी बनी हैं लेटली हमारे दौर में नहीं थी, मतलब हमारे काम के दौर में। तो एज आई कोट बुशरा अंसारी, क्योंकि मैं किसी का कोट लेते हुए ज़रूर कोट करती हूँ कि मेरी सेहत इस काबिल नहीं थी उस वक्त। तो आपने स्क्रिप्ट देख के अभी तो मैं जवान हूँ, गुड मॉर्निंग कराची और जवानी फिर नहीं आनी किया जी, ना सिर्फ स्क्रिप्ट बल्कि डायरेक्टर। अब इसमें लाइक कुछ लोगों की क्रिटिसिज्म होती है कि अच्छी बन रही है, लेकिन ऐसी फील आती है कि हम एक लॉन्ग टेली प्ले या टेली फिल्म देख रहे हैं। तो डू यू थिंक दैट्स फेयर या नहीं, बिल्कुल सही है। दूसरे बड़ी सैड सी बात है, हमारी मार्केट बहुत छोटी है, दुनिया कहाँ की कहाँ चली जा चुकी ना। उन्होंने वो 20 साल 40 साल 60 साल जितने भी थे वेस्ट नहीं किए, वो ग्रो करते रहे। हमने तो ग्रो ही नहीं किया, अभी तो हम स्क्रीन्स को ही रो रहे हैं ना कि हाँ अभी 35 हो गई हैं, अच्छा अभी 40 हो जाएंगे, अगले साल 70 हो जाएंगी। जी जी जी। फिर ये कि आपके शो को क्या कितनी स्क्रीन्स मिलती हैं, सो इकोनॉमिकली कितना बड़ा ये काम है जो कि ऑडियंस को तो ऐसे ऐसा समझ नहीं आएगा। अब एकदम से तो उठ के हम बहुत कमाल 8 या 7 करोड़ में फिल्म, हाँ आपको अपने स्क्रिप्ट पे काम करना चाहिए, मेरा ख्याल है दिस इज़ द स्टार्ट कि जो भी फिल्म बने, हाँ आपको अपनी बैकबोन, क्योंकि मिसाल तो नहीं देनी चाहिए लेकिन मेरा ख्याल है ईरानी सिनेमा ने भी अपनी जगह स्क्रिप्ट के बेस पे बनाई है, क्योंकि वो प्रोडक्शन को मैच नहीं कर सकते थे, वो जहाज नहीं तबाह कर सकते थे, ट्रेन्स नहीं जला सकते थे, तो उन्होंने स्क्रिप्ट पे काम किया तो दुनिया में ही जगह बना ली। हम तो कंफ्यूज है ना अभी, हमने तो बॉलीवुड को अपना एम बनाया हुआ है, तो फिर हम तो अभी एक्सपेरिमेंट को डाल के स्टार व्हीकल बना दो या एक मतलब भी छोड़ देना, मसाला मिशमैश कर दो, ये भी क्योंकि कंफ्यूजन है ना। और वही बात कि सॉरी आपकी बात काट रही हूँ कि हाथ पकड़ने वाले भी तो फिर सही बात है ना, पीछे के पैसा लगाया तो ये करो। लेकिन मैं तो खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं पाकिस्तानी फिल्में तो जाकर के देखी है ना, लेकिन मैंने नोट किया है कि जैसे नामालूम अफराद की टू अ सर्टेन एक्सटेंट जलेबी भी थी, बट व्हेन आई सॉ जवानी फिर नहीं आनी मुझे मज़ा आया, और उसमें जो लेवल ऑफ सेटायर था या जो मिजाज था वो कम से कम उसमें थोड़ी सी झलक नजर आई उसमें, और मैंने 2 दफा जाकर देखी और बच्चों के साथ अगेन इट्स ऑल अबाउट स्क्रिप्ट एंड देन द डायरेक्टर आई मीन ही रियली मेड श्योर के लिमिटेड रिसोर्सेज में भी अगर राइटर ने एक बात कही है तो फिर उसको पैकेज भी सही हो ना, क्योंकि कई दफ़ा आप स्क्रिप्ट की भी कमर तोड़ देते हैं। सो दैट वाज अ परफेक्ट पैकेज फॉर दिस टाइम, बिकॉज देखिए फिल्म एंटरटेनिंग भी होती है। मेरा ईरानी सिनेमा की मिसाल देने का बिल्कुल मकसद नहीं था कि आप रुलाते ही रहें, मेरा मकसद एंटरटेनमेंट भी थी, एंड आई थिंक वी हैव अ डर्थ ऑफ एंटरटेनमेंट। टीवी पे भी हम रुला ही रहे हैं, कॉमेडी देखें टीवी पे खत्म है, फैमिली फ्रेंड के बाद या 2-4 उसके बाद आपको हंसी में नहीं आती। अच्छा पीपल टेक इट लाइटली, तो बड़ा आसान है ना, मैं भी एग्जैक्टली करने लगा, अब अगर कोई हंसाए तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप एक महफिल में अगर एक फीका से लतीफ़ा सुनाए आपकी बड़ी बेइज्जती होती है। आप उदास कोई बात सुना दें तो सारे दिल में हाँ मतलब मान भी जाते हैं, लतीफ़ा आप गलत फीका नहीं सुना सकते, अदाड़ियों के हाथ में कॉमेडी ट्रेजेडी बन जाती है, तो वो हम कर नहीं पा रहे। तो अब आई थिंक जवानी वाज अ वेरी गुड एट अ गुड टाइम इट गॉट रिलीज। देखिए गाने फिर वही ऑडियंस थे, गाने अच्छे थे, मिजाज अच्छा था, जैसा भी है तो फिल्मेटोग्राफी भी मतलब अच्छी थी जो आप बॉलीवुड की देखते हैं उस लेवल। नहीं हमारी तो अब स्क्रीन का रंग ठीक हो गया है, पहले सारी फिल्म मरून होती थी। बिल्कुल 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 हाँ, लेकिन हमें टाइम लगेगा, क्योंकि 80s में एक दफा मुझे याद है, जाहिर हम लोग का स्कूल कॉलेज का टाइम था, तो जब अयाज नाइक और फैसल की मूवीज आती थी तो हम लोग भी खिड़की पे जा करके जो है ना वो ठीक है, और That was the time पे सडनली वो हो गया, फिर वो गंडासा आ गया और वो पता ही है ना, फिर जब अच्छे लोगों के ऊपर पाबंदी, पढ़े लिखे लोगों का स्टूडियो में दाखिला बैन, इस मैं अब नाम क्या लूं लेकिन आटे वाला घी वाला प्रोड्यूसर, वो वाली लड़की पसंद है उसको हीरोइन रख लो, यू नो थिंग्स लाइक दैट। सुनी लग रही है वैसे आटे घी वाली। अच्छा अब फिर एक वक्फे के इशारा जो है वो हो रहा है, ये इस एक प्रोग्राम का मसला नहीं है, ये 3 नस्लों का मसला है जो हम आज निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। सभा के साथ मिलकर एक वक्फा ले लेते हैं, उसके बाद कोशिश करते हैं।
वेलकम बैक। अच्छा सबा मुझे अच्छा ये बताइए कि ये प्लास्टिक के नहीं है, ये खरीदे गए हैं, ये खा सकते हैं आप लोग? मैं अभी खा के डेमोन्स्ट्रेशन तो दी थी शो से पहले। वो तो शो से पहले एक पंजाबी की टर्म है चुल पिच। तो हम सब चुल पिच हैं, जब कैमरा बंद होगा जब खाएंगे उसे सब। अब हम सबके सामने नहीं चबा सकते। जब मेहमान उठ के जाएगा तो फिर उसके बाद भी खा एक दफा डांट पड़ी पापा से, एक बहुत कम डांटते थे वो। मेहमान उठ के गए और ट्रॉली पे हम बहनें टूट पड़ी, और वो हर बच्चा करता था। जब वो वापस आए उन्होंने हमें देखा और इतने भूखे और इतने नदीते हो तुम लोग, अगर मेहमान चाबी भूल गए होते वापस आ जाते तो मेरी कितनी बेइज्जती। तो हो सकता है ब्रेक खत्म होते ही हम पकड़े जाएं। अच्छा सबा तब जो है आज़ादी का मसला था, अब वो मसला नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है ड्रामों में एक ऐसा तर्ज अमल चल रहा है जिसमें सोच फिर भी आगे नहीं बढ़ी। तो सोच के इजहार के लिए कुछ करती हैं आप, क्या लिखती हैं, क्या कुछ ऐसा कोई शायरी, कोई वैसे लिखना कोई? नहीं और ये बड़ी मतलब मुझे बात अपने आप को मैं बहुत, यानी कि अदाकारी तो कहते हैं ना फनून लतीफ़ा में सबसे घटिया फन। आपके अब्बा के बाद कोई आपकी फैमिली में राइटर है? यस। नहीं, कोई भी नहीं। नहीं तो जरासीम तो होंगे ना आप? लिख लेते हैं, जब लिखें तो ठीक ही लिख लेते हैं। और कुछ ये कि उर्दू पे भी थोड़ा है गुर, तो फलाना टीरा नहीं। अच्छा टीरा मैं कितने दफा बोलता हूँ, बहुत ज्यादा। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आई एम सो सॉरी, आपको ये ना लगे कि मुझे नहीं प्लीज डोंट बल्कि इतना बोलते हैं कि कभी कभी आप भी फलाना टीरा ही लगते हैं। नहीं ये फलाना लगता है, टीरा हम में से कोई लगता है। नहीं प्लीज। अच्छा मैंने ये नहीं, इसको नहीं जाने देना है, बहुत क्यूट बात है। हर फलाने टीरे की बात नहीं सुनता। 3 जनरेशंस की मैंने बात की थी। मसलन इनके जो वालिद थे हमीद अख्तर साहब, उन्होंने 2 फिल्में बनाई, सुख का सपना और पराई आग जो है सन 71 में बनाई। बस ठीक था मामला उस जमाने, कमर्शियल मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद जाहिर है कि इनकी जनरेशन आ गई है, अब इनके बच्चे भी आ गए हैं, जैसे मीशा हैं या फारिस हैं। बिल्कुल। तो भूल जाएंगे आप उनकी माँ हैं। डिटैच होके प्रोफेशनली बताएं कि वो उनको कहाँ रेट कर रही हैं आप, जो वो काम कर रहे हैं। प्लीज मुझसे ना पूछे। बिल्कुल ना पूछे, क्योंकि मैं खुद इतना नहीं मैं खुद बहुत ज़्यादा क्रिटिकल तो खैर होते ही हैं पेरेंट्स आई गेस, लेकिन खुद बंदा बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजर जाता है ना, पतली रस्सी पे भी चल जाता है, बहुत ऑडियंस को भी फेस कर लेता है, लोग पब्लिक को भी फेस कर लेता है। लेकिन आपका बच्चा स्टेज पे खड़ा हो और आप ऑडियंस में बैठे हो, उससे मेरे लिए यानी कि दहशतनाक बात कि यू नो एनीथिंग, एक पैर का स्लिप, एक ज़बान की गलती, एक कुछ, तो वो ड्रेड हर वक्त रहता है। बट आई थिंक कि मैं आज तक जो भी मेरे दोनों बच्चों ने किया, उन्होंने मुझे प्राउड ही किया अभी तक। अच्छा, आई एम वेरी प्राउड। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अब जाहिर है कि एक पेरेंट अपने औलाद को क्रिटिसाइज तो करते हैं, ठीक है ना, उनके सही भी करते हैं, बाकी को क्रिटिसाइज करें तो आपको कैसा फील? वही तो मैं कह रही हूँ, बिकॉज़ नहीं वो तो I can't take it. Sorry, जैसे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे I can't take it. गाना मीशा डज अ सॉन्ग फॉर कोक स्टूडियो, तो फिर और क्या, कुछ लोग मैं कमेंट्स नहीं खोलती। आप नहीं खोलती? आपसे I नहीं can't देखा take it. जाता। No, I can't take it. हाँ, I can't take it. तो बच्चों ने ये फैसला खुद किया? जी, मुझे तो पता ही नहीं था। आज खुद नोटिस लिया सर मैंने, मेरा ख्याल है मीशा को गाते रेडियो पे सुना। अच्छा, वो हाँ, घर में नहीं सुना? नहीं कभी। और मैं इसमें देयर इज नो एग्जैजरेशन, नो झूठ, नो नथिंग। क्या उसके कमरे में म्यूजिक लगा होता था, पर वो साथ गा रही है मुझे नहीं पता चला। और वो पहले उसने, और वो गाना भी क्या था, वो जब वो ओवरलोड के साथ पहला जो अलाप सा ही था, आई गेस नॉट वर्ड्स, और थोड़ा ड्रम की में दबाई भी हुई थी। दैट वाज, आई एक्चुअली एक्नॉलेज्ड हर रेंज देयर ऑन द रेडियो कि हाँ ये बड़ी विटनी ह्यूस्टन टाइप आवाज है। बिल्कुल। और तो मीशा की कहानी भी जो है ना अंडरग्राउंड बैंड से शुरू होती है, और शी क्राफ्टेड हर ओन वे, वो जाहिर है थोड़ा बहुत एक्टिंग भी उन्होंने जाहिर करी, एक मेजर सीरियल में वो आ भी नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि शी इज़ टेकिंग योर लेगेसी फॉरवर्ड, के वही जो एक बागियाना ख्याल है चाहे माशरे के, लगता है कि यस शी हैज़ इट इन हर टू। शी डज वो नहीं, आई थिंक कि हम उसको टोटली उसकी अपनी आइडेंटिटी के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि उस हाँ मेरा उसका किसी किस्म का भी इन्फ्लुएंस या हेल्प या सपोर्ट या
सिफारिश, आपको तो पता ही नहीं था कि वो अपनी, हाँ, इवन एक्टिंग में भी। नॉर्मली अगर आप नोटिस करें ना तो हम जैसे ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ ये होती है कि हम जवानी में खुश होते हैं सिनिकल होते जैसे साफी का होता है, सिनिक हो जाते हैं। आपको मैंने देखा कि आप जवानी में सिनिक थी थोड़ी, मतलब सीरियस, उसके बाद होते फिर कहकाओं में निकल ही गई आपकी ये हंसी। तो क्या ये हंसी इज पार्ट ऑफ योर एग्रेशन? वैसे यू आर एब्सोल्युटली राइट, एंड आई थिंक और बहुत कम लोग ये बात को इस तरह से जान चुके हैं। नहीं, ये अब आई, ही इज राइट। कुछ हालात, वॉक डाउन, जिम्मेदारियाँ, सर झुका के काम करने की आदत के कहीं पहुंचना है, अब जो भी मतलब कुछ भी अगर मैंने करना है ना तो फिर मैंने उसको अपने तौर पे ठीक तरीके से करना है। तो उसकी सीरियसनेस और इस चीज़ ने वाकई बहुत वक्त से पहले बिटर कर दिया था, क्लोज कर दिया था। सीरियसनेस के बिल्कुल वो जो है ना, मतलब एग्रेशन नहीं, सारे किरदार जो हैं मार देंगे एवरीबॉडी थिंक्स सो, वैसे ऐसा भी नहीं था। जो इनके पीटीवी के प्लेज हैं या इवन बात तक के, उसमें हमेशा इन्होंने सीरियस रोल किया। सीरियस, बिल्कुल। So it was very, people were surprised जब मैंने फैमिली फ्रेंड किया था। and they were like, you know, okay, this is हमीद। और उसके बाद से जो सिलसिला चला है, आपको ये सीरियस नहीं लेता। कह रहे हैं वैसे सीरियस ले ना लें, ब्रेक लेने का टाइम आ गया है, थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। अच्छा जी, अब सवाल आपसे ये है कि अगर पूरी हिस्ट्री में ले लें, आप बॉलीवुड ले लें, हॉलीवुड ले लें और लॉलीवुड को भी इंक्लूड करना चाहें तो कर लें, आपको किस अदाकार या अदाकारा के साथ को स्टार करने का शौक है? I mean, out of all of history, all actors ever. It's a huge question, isn't it? आपके लिए आसान किया मैंने। ये आसान, इतना बड़ा दे के प्लेटफॉर्म बहुत है क्या, मैं किसी एक को तो चूज ही नहीं कर सकती मैं। चलिए टॉप 3। At one time I wanted, I mean, I don't know, मैंने ऐसे वैसे कभी सोचा नहीं, लेकिन हैरिसन फोर्ड है जो कि मुझे बहुत पसंद है। I think he's a great actor as well. Raiders of the Lost Ark। प्रिंसेस लिया। हाँ। और हमने लेकिन नहीं चूज किया। अच्छा, टीवी वालों निकलसन, एल पचिनो के साथ नहीं, लॉरेंस ओलिविये नहीं, हैरिसन फोर्ड। और अब मैं उनका हमेशा उसका नाम भूल जाती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन नाम याद आएगा तो फिर बताऊंगी, वो भी इटालियन ही है, बट नॉट एल पचिनो। नॉट एल पचिनो, ओके जी सर। एंकरिंग और होस्टिंग, इससे आप कैसे बची? किसी ने कहा ही नहीं। हमारे वाले मामला है, बिल्कुल मैं नहीं बचना चाहती, पर किसी ने कहा ही नहीं। ये वही है ना, सॉरी मैं अभी बात कर रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि यार आप मतलब किसी और चैनल पर आप क्यों नहीं जा रहे हैं, बुलाते नहीं। सॉरी, क्या एक्टर्स को एक्चुअली, और फिर फीमेल एक्टर्स को सीरियसली नहीं लिया जाता। आप लोग ये नहीं समझ रहे कि ये माइंडसेट, मैं एक कहते अच्छा, यानी मेल एक्टर्स अगर बहुत बेवकूफ़ भी हों, सॉरी, तो वो उनकी बात को माजरत ऑडियंस सच बोलने लगी है तो कोई बात नहीं, बोलने देंगे, मत रोको। जी जी, वो मैं देखती हूँ ना सेट्स पे भी कि आई एम मेकिंग सेंस, आई एम टेलिंग यू द राइट थिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर प्ले, फॉर द प्रोडक्ट, एंड यू आर नॉट लिसनिंग टू मी बिकॉज you are a female. Excuse me, I am a woman, I am stupid, I don't have my brains. He does. Whereas उनको पता ही नहीं है कि वो क्या बात कर रहे हैं, जो भी कोई है, जो भी ऐसी बात नहीं है, वो जो भी है ना, यस सर है, यस सर है। हमने कुछ ज़्यादा आपने दिल पे नहीं ले लिया, मुझे इस तरह का कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। आपको ज़्यादा सर, आप बॉयज़ कॉलेज में पढ़े हुए हैं, बॉयज़ से आपको कैसे कहते रहो, वो सारे लफ्ज़ कह दो जिसमें बॉयज़ आ रहा हो यार, प्लीज़। आपको तो ये पता चल ही नहीं सकता। अच्छा, हाँ, पैट्रियार्कल सोसाइटी में आप लोग रहते हैं, बेशक के आप सोचते भी हैं इस बारे में, आई नो कि आप लोगों को इस, यू आर अवेयर ऑफ दिस, फिर भी आप ये एक्सपीरियंस आप लोग नहीं कर सकते, ये फीलिंग, बिकॉज यू कांट पुट योर फिंगर ऑन इट, यू कांट से कि तुम मुझे इसलिए कह रहे हो क्योंकि मैं औरत हूँ, यू कांट से दैट। तो ये जस्ट अ फीलिंग, बहुत ऑब्वियसली, हाँ ऑब्वियसली कोई बहुत ही कोई नहीं, लेकिन दूसरी तरफ खवातीन एंकर्स जो हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, वो तो खासी हिट है, मकबूल है। बिल्कुल बिल्कुल है, मतलब वो न्यूज़ का वो सारा,
میرا فیمیل ہونا اور ساتھ میں ایکٹر ہونا بھی تو آپ سوچیں نا, تو میں تو پھر ڈم بلانڈ ہی ہوں نا لوگوں کی نظر میں, میرے خیال میں. میرا خیال کہ کسی کی نظر میں ڈم بلانڈ نہیں ہے یا رہی. I don't know. ہاں تو ٹریٹ جس طرح معاشرے میں کیا جاتا ہے, تو آپ نے مطلب اگر سمرائز یور لائف کہ آپ کس طرح نکلی, ظاہر ہے ہمارا میل شوونسٹک معاشرہ ہے, سب کو پتہ ہے, خواتین کو ہر جگہ دبایا جاتا ہے پریکٹیکل لائف میں جب بھی آتی ہیں, ظاہر ہے, اور بہت سے ہر روز ہم ایسے واقعات سنتے ہیں کہ بھئی خواتین محنت کر کے بھی ساری چیزیں لائیں, پھر بھی ان کے ساتھ جو ہے نا زیادتی ہوتی ہے. تو کیا ہاؤ ڈیڈ یو کارو دس نیش, کہ آپ نے کس چیز نے آپ کو وہ کیا کہ ڈرائیونگ فورس دی کہ نہیں آئی کین سکسیڈ, یہ مردوں کا معاشرہ ہے بٹ آئی کین کارو مائی اون نیم, میں اپنا جو ہے راستہ خود بناؤں گی. آئی تھنک آنیسٹی ان مائی ورک, کہ اچھا کرتی ہوں یا برا کرتی ہوں, میں آنیسٹلی کرتی ہوں. اور وہی بات کہ جیسے ہم آڈینس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں نا, اسی طرح شاید لوگ بھی پھر آپ کی آنیسٹی سے متاثر ہو ہی جاتے ہیں, پھر وہ جگہ بن جاتی ہے آخرکار. تو اٹس اے لانگ وے, شارٹ کٹ نہیں ہے اس میں کوئی, لیکن آپ کو آنیسٹلی اپنا کام کرتے رہنا چاہیے, شارٹ کٹس پہ جانا نہیں چاہیے. میں نہیں گئی. اچھا, پسندیدہ شعر تو سنا دیں یار. اس کے بعد اب یہ ہے کہ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہونے والا ہے آپ کی پسندیدہ سبزی کون سی ہے, آپ کو رنگ کون سا پسند ہے؟ وہ سر وہاں سے مجھے اشارہ کر رہے تھے کہ پروگرام کلوز کرنا ہے, اسی لیے میں نے شعر پہ کلوز. وہ سر صاحب کے شعر نہیں, میں شعر کی بجائے ایک آخری سوال ہے اس کا مختصر سا جواب دے دیجیے گا اگر کلوز کرنا ہے پروگرام, کہ آپ کے جو ہے سلسلہ نسب اس میں پولیٹیکل کمٹمنٹ جو ہے وہ اول چیز تھی, اور آپ کی جنریشن تک بھی ہو سکتا ہے آپ نے آگے بھی یہ چیز فارورڈ کی ہو, لیکن فی زمانہ پولیٹیکل کمٹمنٹ ایک آرٹسٹ کے لیے ضروری ہے یا اس کے بغیر بھی کام چل جاتا ہے, بلکہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی کمٹمنٹ ہو؟ اب چھوٹا تو جواب مجھ سے دیا نہیں جاتا, میں زیادہ بولتی ہوں, آپ لوگوں کو بھی پتہ چل گیا ہوگا. دیکھیں, آرٹسٹ بھی انسان ہے, سٹیزن ہے, شہری ہے, اور ایک جگہ سے بلانگ کرتا ہے, اس کے حقوق, اس کے فرائض وہی ہیں جو ایک شہری کے ہیں. پولیٹیکل سینس ہر شہری میں ہونی چاہیے, اس میں وہ آرٹسٹ ہو, شاعر ہو, کام کرنے والا ہو, کوئی کسی بھی لیول کا, کسی بھی کلاس کا, کسی بھی جگہ کا ہو. ہماری شاید تھوڑی سی بدقسمتی ہے کہ لوگ پولیٹیکلی اتنے اویئر بھی نہیں ہیں, اور وہ پلینگ ٹو دا گیلری پہ چل پڑتے ہیں. دوسری بات ہے کہ پولیٹکس اگر کہنا پولیٹیکلی اویئر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ گالی دے رہے ہیں. ہاں وہ بھائی, یہ تو لائف از پالیٹکس ہے, اور یہ آپ کی اپنی اور اپنی جنریشنز کی, یہ ملک کی آگے کی نسلوں کی بہتری کے لیے آپ کا پولیٹیکلی کریکٹ ہونا, پولیٹیکلی اویئر ہونا بہت ضروری ہے. تو آرٹسٹ بھی اسی طرح انسان دیکھیں نا, گالی بنا دیا گیا نا, مطلب کہ اتنی اے پولیٹیکل, ہاں جہاں پر بھی ایسے وہ آئے کہ اب ہر بندہ کہتا ہے کہ نہیں جو کام ہے وہ برا سیاستدان نے کیا ہے, اور سارا ہر کو, تو سیاست اگر بری چیز ہے تو یہ تو ایک پارٹیسپیشن ہے نا. آپ یا تو پھر اپنا آئین بدل دیں, آپ قانون سب کچھ وہ کر دیں, تو نہیں وہ دوسری ڈومین ہے. بٹ آئی ایگری, ٹھیک ہے. بیسیکلی لوگوں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اسے بکریاں چاہیے, مرغیاں چاہیے, بطخیں چاہیے, وہ زیادہ سوٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچانا؟ اچھا ٹھیک ہے. نہیں, آپ نے شعر سنانا تھا. نہیں, مجھے نہیں سنانا, بھول گیا ہوں. اچھا بھول گئے ہیں وہ سر, تو اتنی بڑی شخصیت ہے یار, کہاں سے یاد؟ ہاں یہ بات, اب شو بند کرتے ہیں. نہیں اب آپ, اچھا شو میں بند کرتی ہوں. ہاں آپ بتا رہے, ٹھیک. اس بات کے ساتھ جو کہ مجھے موقع نہیں ملا یہ کہنے کا کہ میں آپ تینوں کی بہت بڑی فین ہوں, جب آپ کی تب سے ہوں جب سے آپ لکھ رہے ہیں, اور پھر شو کے بعد بھی رہی, ایسا بالکل نہیں ہے کہ اس کے بعد نہیں رہی, اور آپ دونوں کی جب سے آپ شو کر رہے ہیں, کم ہیل ہائی واٹر, میں آپ لوگوں کا پروگرام ضرور دیکھتی ہوں. اس کے ساتھ ہی آپ لوگ ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.